आप सभी का स्वागत है आज के सचम सोसाइटी के सेशन में। और जैसा कि आज का सेशन है आपका वर्क प्लेस कन्वर्सेशन का। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कैसे हम अपने फैमिली फ्रेंड के साथ बात करें। तो आज हम वर्क प्लेस कन्वर्सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनुष्का नायर जी को फॉर द ब्यूटीफुल टुडेस रिसोर्स पर्सन एंड आवर लीडिंग पर्सन एज वेल। ओवर टू यू। Thank you, sir. We're excited to introduce Miss Shweta ma'am, our English teacher, trainer, and currently working as a center head at Saksham Bharati Dwarka. A graduate in English Honours from Delhi University, Ms. Shweta has spent over 3 years at Raghubir Nagar Center, starting as a student and later as a dedicated trainer before joining since 2021. With a positive outlook, respect for others, perspectives, and strong problem solving skills, Ms. Shweta brings a wealth of experience and passion for teaching. Now, I would like to introduce our today's leading person, Ms. Zinera Amreens ma'am, who holds a master's degree in botany and a bachelor of education. She has previously served as a PGT teacher at Government Girls Inter College Gorakhpur. At present, she resides in Delhi, NCR, and is actively associated with various educational and cultural NGOs, where she continues to contribute her knowledge and experience towards community and educational development. Thank you. Well, thank you, Anushka ji, for the introduction. Now like to request our resource person to start the session. Good evening, everyone, and thank you so much, Abhishek, for inviting me. So, in yesterday's session, we discussed about the phrases that can be used with friends and family. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किन सेंटेंसेस या फ्रेजेस को इंग्लिश में अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आज का जो सेशन है, दिस इज अबाउट वर्क प्लेस फ्रेजेस एंड वर्क प्लेस कॉन्वर्जेशंस। बेसिकली इस क्लास में आपको ये सीखने को मिलेगा कि वर्क प्लेस पर उपयोग किए जाने वाले फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उनको किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं आप। सो आई एम गेटिंग स्टार्टेड विद द सेशन। इसमें बिकॉज this language of workplace sentences will all be formal, so किसी को भी कोई डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा, so you can raise your hands. So I'll be answering all your doubts in between the session. आपको सभी को क्वेश्चंस पूछने हैं बिकॉज इसमें आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं कीजिएगा। आप अपना आप अपना हैंड रेस करें और उसके बाद आपका जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। सो आई एम गेटिंग स्टार्टेड विद द सेशन। So in this session, we will be covering workplace phrases and dialogue samples as yesterday's session. Yes, ma'am. इसको शिफ्ट F5 कर दो ना, आपका पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा पीपीटी। शिफ्ट F5 रन का जो होता है, पीपीटी रन करने का जो होता है। हाँ, नो इट्स ओके। Thank you, ma'am. So in this session, we will be covering workplace phrases and dialogue sample. So कल के सेशन में हमने सबसे पहले जिन डायलॉग्स की प्रैक्टिस की थी और सीखे थे वो थे ग्रीटिंग्स के। ऑफिस में भी जब भी हम जाते हैं, सबसे पहले हम सभी को ग्रीटिंग्स, जो भी हम पहला सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि आप अपने ऑफिस में जाते होंगे या आपने देखा होगा गुड मॉर्निंग या फिर हाउ आर यू टुडे, इस तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। सो सिमिलरली हम इस सेशन को भी ग्रीटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन that you can use when you are going to your office and you are meeting people over there, like your colleagues, your boss. So
the most common phrase that is used is good morning. As per time, you can use good afternoon, good evening. After this, we have the second sentence, and that is, how's your day going? How is your day going? इसका मीनिंग होता है आपका डे कैसा जा रहा है. ओके, ये जो हाउस है ना, ये हाउ इज की अब्रिविएशन है, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये. देन हाय, यहाँ पर जहां पर ये मैंने नेम लिखा है, इसमें आप उस पर्सन का नेम पुट कर सकते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं at your office. So for example, if I'm talking to Pankaj, so I can say, hi Pankaj, welcome to the team. Welcome to the team is said when कोई न्यू पर्सन आपकी टीम, आपके ऑफिस को ज्वाइन कर रहा है, तो आप उस केस में किसी का वेलकम करना चाह रहे हैं, तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं. हाय पंकज, वेलकम टू द टीम. Then fourth is pleasure meeting you. I am, then you can introduce yourself. Pleasure, or you can say good, it is like good to meet you. Yes, good evening Sonu. So I am, you can like put your name. I am Rohit. Pleasure meeting you, आपसे मिलकर अच्छा लगा. I am Rohit. आप अपना नेम भी बता सकते हैं. After this, we have the fifth sentence, and that is, hope you are doing well. Hope का मतलब है मैं आशा करता या करती हूँ that आप अच्छे होंगे. Okay? Then, sorry. Nice to meet you. Then you can use the name. Second last sentence is warm welcome to the team. This is similar as the third sentence. In third sentence, we used hi Pankaj, welcome to the team. And in the second last sentence, we are using warm welcome to the team, Pankaj. Okay. And the last sentence is hello there, how have you been? आप कैसे हैं? Basically, how have you been में हम पूछ रहे हैं किसी से कि आप कैसे हैं. Now, this was about greeting and introduction. आप ऑफिस गए, आपने जो सबसे पहला इंटरेक्शन किया, जो सबसे पहली बात की, सबसे पहला सेंटेंस बोला, वो इन्हीं में से कुछ एक हो सकता है. Okay, so if you want to take the screenshot, you are welcome to do the same. I'm moving to my next slide. This slide is about requesting. At office, at your workplace, because we are working within a team, हम एक टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमें हर स्टेप पर मे बी नॉट एट ऑन एवरी स्टेप, बट मोस्टली हमें अपने टीम मेंबर्स में किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है. कोई आपकी हेल्प लेगा या कल आप किसी की हेल्प करोगे. सो if you want to take help, if you would like to request somebody for help, these are the sentences on your screen that you can use. The first sentence in the list is, could you kindly. Could you kindly. Kindly का meaning होता है कृपया. और could you, as I said yesterday, as I discussed yesterday, could you is used to make polite request. जब आप किसी को बहुत politely कुछ request करना चाहते हैं, so we use could you. Okay? For example, now let's make a sentence. Could you kindly pass me that file? Okay? Next is, second sentence is, would it be possible for you to. Would it be possible for you to. मतलब क्या ये आपके लिए possible होगा? Now let's put a sentence. Let's make a proper sentence. Would it be possible for you to come early tomorrow? क्या ये आपके लिए possible होगा कि कल आप थोड़ा जल्दी आ जाएं? Okay? I would be grateful if you could. Grateful का meaning मैंने आप सभी को first session में ही समझाया था. So do you remember? Does anybody remember that the meaning? If yes, then please raise your hands. I will ask the meaning. Sonu has raised his hand.
ग्रेटफुल का मीनिंग, आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, ग्रेटफुल का मीनिंग क्या था? आभारी मैम। ओके ओके, थैंक यू ज्ञानेंद्र, थैंक यू सोनू, थैंक यू तन्नु. You can answer the rest of the questions that I'm going to ask you in the session later. Okay. So I would be grateful, मैं आपका आभारी होऊंगा अगर आप, if you could, now you can make the sentence. आपको जिसमें भी help चाहिए वो आप यहाँ पर insert कर सकते हैं. Like I would be grateful if you could complete this project within the timeline. मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप ये प्रोजेक्ट इसी टाइमलाइन में फिनिश कर सकते हैं. And I'm requesting every student that when you are attending this class, you must be having a notebook and a pen in your hand so you can practice, you can write these sentences and you can revise them later. क्योंकि ये sentences आपको अभी हो सकता है easy भी लगेंगे, समझ आ जाएंगे, but आपने लिखे नहीं होंगे, practice नहीं करोगे तो ये आपको याद ही नहीं रहेंगे. और अभी तो आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, सो ये सेंटेंसेस तो आपको वहां यूज करने हैं. सो आपको तब तक इनको प्रिपेयर करना है ताकि जब भी आप अपनी नेक्स्ट जॉब में जाएं तो वहां पर ये यूज कर पाए. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, द फोर्थ सेंटेंस इज मे आई रिक्वेस्ट. मे आई रिक्वेस्ट का मतलब है अगर आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड मे तो आप सभी ने बहुत यूज किया है, हम स्कूल में भी मे का यूज करते थे, दैट मे आई गो आउट मैम, मे आई ड्रिंक वाटर. सो इन द सेम वे, बिकॉज मे इज formal and it's very formal, you should be using may I request for a meeting please. May I request for a meeting, क्या मैं मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता या सकती हूँ? So in the same way you can make many sentences using this phrase. Then we have the fifth sentence. I will send the slides in the group, Sonu. So please let me know if you can. Please let me know. Is there any student who can translate the meaning of please let me know? Payal has raised her hand. Naresh has raised his hand. Shivam also. So what is the meaning of please let me know? Naresh, you can answer. हेलो मैम. Yes, Naresh, hello. मैम प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन का मतलब है मुझे जानने दो तुम क्या कर सकते हो या सकती हो. Okay. Okay, thank you, Naresh. Payal, what is your answer? Yes, Payal. क्या आप मुझे बता सकते हैं आप जानते हैं? Yes. So basically, please let me know is क्या आप मुझे बता सकते हैं? Okay. If you can uh, make some assignments before the meeting. So I'm just completing the sentence. You can use this phrase accordingly as per situations. Now, the sixth sentence is I need your help with. I need your help with. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने कलीग की, जो भी आपके साथ वर्क करते हैं, उनकी हेल्प चाहिए. सो यू कैन आस्क देम बाय यूजिंग दिस फ्रेज आई नीड योर हेल्प विद के बाद आप उस टास्क का नेम बताएं उस जिसमें आपको हेल्प चाहिए. For your reference, I'm giving you an example. I need your help with today's project. मुझे आपकी हेल्प चाहिए आज के प्रोजेक्ट के लिए. ओके. देन वी हैव इट वुड हेल्प इफ यू कुड. इट वुड हेल्प मतलब ये मुझे हेल्प करेगा अगर आप, देन अगेन जो भी टास्क है आप उसको इंसर्ट कर दे सेंटेंस के आगे. देन वी हैव कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स. कुड यू स्पेयर बेसिकली हम किसी को बोल रहे हैं क्या आप कुछ मिनट्स निकाल सकते हैं for
for reviewing this project. Okay, could you spare a few minutes for reviewing this project? Then we have I am hoping you could. I am hoping, basically मैं आशा कर रहा हूँ, और you can say मैं expect कर रहा हूँ that you could help me with this particular presentation. Okay, you can say I'm hoping you could help me with this presentation. If you could help me with this document, that would be great. If you could help me with this document, अगर आप मेरी इस document में help कर पाते तो ये मेरे लिए या फिर ये बहुत अच्छा होगा. That would be great. Would का meaning होगा, would का meaning होता है होगा. That would be great. ये अच्छा होगा. Okay. And the last sentence on this slide is I'd like to ask for your assistance with. अब यहाँ पर जो ये I'd आप देख पा रहे हैं, सॉरी, ये जो I'd जहां पर ये मेरा कर्सर है अभी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है I'd. So whosoever knows the answer, they can just raise their hands. Okay? Yes, Gulshan. I did. No, the meaning, oh sorry, the full form is not I did here. Anybody else who would like to answer? Yes, ma'am. Yes, Anish. Ma'am, I would like to ask. I would. Okay, Naresh has answered. Okay, yes, it is I would. I would like to ask for your I would. assistance. Okay, okay. Thank you everybody. Please now mute yourself. I'd like to ask, I'd का यहाँ पर meaning sorry, full form होगी I would. I would like to ask for your assistance. Assistance की का meaning होता है help. Okay? So मैं आपकी help इस for example project में लेना चाहूंगा. I'd like to ask for your assistance with this project. could का हिंदी मीनिंग होता है, जैसे मैंने बोला could you give me that project file? क्या आप मुझे वो प्रोजेक्ट फाइल दे सकते हैं? यहाँ पर जो हम किसी से पूछ रहे हैं ना, वो हम उनसे बहुत पोलाइटली पूछ रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं. सो जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट किसी से करनी है और बहुत पोलाइटली करनी है, लाइक यू आर स्पीकिंग विद समबडी हु इज वेरी लाइक सीनियर टू यू, and they might be your seniors at office, they might be your teachers. Okay, so you can use could. Okay, thank you, Pratika. Sonu, you are saying that you have a doubt. So please, you can speak like the doubt you have. You can unmute yourself and ask your doubt. हेलो Yes, Sonu. मैम, ये जो एक सेंटेंस है आई नीड योर हेल्प विथ, मैम कभी कभी हम इसके साथ हम टू का भी यूज करते हैं. ठीक है, तो टू कब यूज करना है और विथ कब यूज करना है, ये थोड़ा डाउट. ओके ओके, आई नीड योर हेल्प विद. जब आप किसी टास्क के बारे में इसके बारे में बाद में बताएंगे तो आप बोलेंगे आई नीड योर हेल्प विद दिस असाइनमेंट, और यू कैन से आई नीड योर हेल्प विद दिस डॉक्यूमेंट. अब टू एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, आई नीड योर हेल्प टू अचीव दिस गोल. टू अचीव दिस गोल, व्हेन आई एम यूजिंग अ वर्ब. ओके, मैं एक वर्ब यूज कर रही हूं अचीव. I need your help to achieve this goal. Did you understand? यस मैम, यस मैम, Okay, यस. okay. So with जब मैंने with यूज किया तब मैंने डायरेक्टली वर्क एक अपना बताया, उसमें मैंने कोई भी अदर वर्ब को यूज नहीं किया, मैंने अपना वर्क बताया. But when I am using to, I will use a verb with the same. Okay. I hope this part is clear. And अभी तक जो भी मैंने समझाया, if anybody has any doubt,
they can raise their hands or they can write it in the chat box. They can unmute themselves to answer, to ask the questions, or if you have any kind of feedback, you're open to do. Okay, all clear. Now this one is offering help. पहले हमने सीखा रिक्वेस्ट कैसे करनी है. Now we will be learning about offering help. अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं, आप अपनी टीम में किसी कलीग की या फिर किसी की भी हेल्प करना चाहेंगे, सो ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज, इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो. अगर आपको कुछ चाहिए, मुझे आप बताएं. इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो. सेकेंड इज, आई एम हैप्पी टू हेल्प. मतलब मुझे आपकी हेल्प करके अच्छा लगेगा. आई एम हैप्पी टू हेल्प. थर्ड इज, फील फ्री टू पिंग मी इफ यू रिक्वायर असिस्टेंस. पिंग मी का मीनिंग होता है कॉन्टेक्ट मी. ओके, फील फ्री टू पिंग मी इफ यू रिक्वायर. रिक्वायर का मीनिंग होता है हेल्प, और असिस्टेंस मैंने बोला ही था. आपको अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो उसे असिस्टेंस बोलते हैं. सो फील फ्री टू पिंग मी. फील फ्री का मतलब होगा जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई चिंता मत करें, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे कॉल करें. तो इन द सेम वे इन इंग्लिश वी से फील फ्री टू पिंग मी इफ यू रिक्वायर असिस्टेंस. फोर्थ सेंटेंस, लेट मी नो हाउ आई कैन सपोर्ट यू. लेट मी नो, आप मुझे बताएं मैं आपकी कैसे सहायता, सपोर्ट जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सहायता कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ. लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प सपोर्ट यू. हेल्प यू भी आप बोल सकते हैं, देयर इज नो इशू. देन आई एम हियर टू हेल्प. आई एम हियर टू हेल्प का मतलब है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ. वुड यू लाइक मी टू टेक केयर ऑफ. वुड यू लाइक मी, वुड यू लाइक, क्या आप मेरी हेल्प लेना चाहेंगे. इसमें हम ये पूछ रहे, वुड लाइक मी टू टेक केयर ऑफ का मतलब यहाँ पर होगा जैसे किसी काम को देखना. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग some of like my teammates that would you like me to take care of budgeting part. क्या मैं budgeting part को देख सकती हूँ. Okay, but here I am asking them, I'm offering the help. I'm not saying it directly that मैं ही देखूंगी. I'm just offering. Now it is in my team's hand if they would like me to give that particular task. अगर उनको लगेगा तो वो मुझे देंगे, but here I am offering. Then we have the third last sentence. If there's anything you need, I am available. अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको चाहिए, मैं available, मैं यहाँ पर हूँ. Let me know if I can help. मुझे बताएं अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ. ये थोड़ा सा सिमिलर है similar to the fourth sentence which was let me know how I can support you. बस इसमें डिफरेंस ये है, let me know के बाद हमने यूज किया है if I can help. Okay, so both are correct. Both are, I mean, correct, and both are used commonly. The last sentence of this slide is, I can take care of that. I can take care of that. इसका मीनिंग होगा मैं इस टास्क को देख सकता हूँ. मतलब हम कोई टास्क के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने टीम को बोला कि मैं ये देख सकता हूँ, ये वाला काम मैं कर सकता हूँ. So you can say I can take care of that. So I hope this slide was clear to everybody. Okay, thanks for confirming. Thank you so much. Thank you. Now apologizing. When we are working with team, because we all are humans, we make mistakes. हम सभी humans हैं, हमसे mistakes हो सकती है. We are not robots. We are working within our own mindset. So sometimes जब हमसे mistake हो जाती है तो हमें उसको accept करके उसको कैसे माफी मांगनी है. Now these are some ways. Okay,
apologizing. The first sentence is my mistake, let me fix it. ये सेंटेंस हमने कल भी लर्न किया था. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज कल भी आप यूज कर सकते थे. वो इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस थी बिकॉज वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ थी. दिस कॉन्वर्जेशन लाइक वर्क प्लेस कॉन्वर्जेशन जो होती है वो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है बिकॉज वो आप कलीग्स, अपने बॉस, सीनियर्स के साथ यूज करते हैं. तो दोनों सिचुएशन में ये सेंटेंस परफेक्ट है. माई मिस्टेक, लेट मी फिक्स इट. ओके, लेट मी फिक्स इट, मैं इसे फिक्स करूंगा, मतलब मैं इसे ठीक करूंगा. आई डिडंट मीन टू, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, या मैंने जो मेरे से हो गया वो मैं करना नहीं चाहता था. आई डिडंट मीन टू. ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट. when you just want to say simple sorry, so ये आप use कर सकते हैं. I am sorry about that. I'm really sorry. I apologize. Please accept my apologize. I take full responsibility and will fix it. मैं इसकी पूरी responsibility लेता हूँ या लेती हूँ और मैं इसे ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, करूंगा या करूंगी. My sincere apologize for the error. Error क्या होता है? आप सभी ने कंप्यूटर में देखा होगा. You must have heard this word, error. गलती मैम. Yes, गलती. So my sincere basically when आप किसी error को, किसी गलती को बहुत when you are very concerned and very serious about something that has happened, so in that particular case we can say my sincere apologize. Sorry for the oversight. Now this is a new word you all can write on your notebooks. Oversight. Oversight करना क्या होता है? Can anybody answer? Can anybody answer please? मैम रिपीट. Oversight, oversight, OVERSIGHT. जो 9 सेंटेंस है. Yes. Yes. मैम दूरदर्शी. Yes. जो दूर की चीजों पर. नहीं, यहाँ पर दूरदर्शी नहीं होगा इसका मीनिंग. यहाँ पर इसका मीनिंग होता है समथिंग जो आपसे अनदेखा आप कर देते हो, जैसे कि अविनाश ने बोला. यस यस. सो समथिंग जो आपसे गलती से छूट जाता है, रह जाता है. ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर आंसरिंग. आई थिंक ओवरसाइट का मीनिंग अब सभी को क्लियर है. समथिंग जो आप अनदेखा कर देते हो गलती से. सॉरी फॉर द ओवरसाइट. Then we have, I'm sorry for the misunderstanding. I'm sorry for the misunderstanding. Misunderstanding भी बहुत commonly used word है. इसका meaning होता है जब हमसे कोई mistake होती है but उसमें हम भी confuse होते हैं और या तो सामने वाला confuse होता है, तो proper जब हम communicate नहीं कर पाते या communication बीच में कुछ रह जाता है जिसकी वजह से सामने वाले को कुछ और लग जाता है या हमें कुछ और फील हो जाता है, सॉरी लग जाता है, हम कुछ और समझ लेते हैं, उसे हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके, कुछ समझने की, कुछ जो वो समझाना चाहते थे उसको समझने की जगह हम कुछ और समझ लेते हैं. I apologize for any inconvenience. ओके, जब हमारे से कोई गलती हो जाती है और हमें उसका पछतावा भी है कि वो हमसे हुआ है और सामने वाले को हो सकता है उसकी वजह से, हमारी गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हुई होगी, सो उसको हम इनकन्वीनियंस बोलते हैं. और जब हम बोलते हैं आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस, तो वहां पर हम बोल रहे हैं कि जो भी आपको मेरी वजह से परेशानी हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ. ओके, सेकेंड लास्ट इज सॉरी अबाउट दैट. सॉरी अबाउट दैट सिंपली यू कैन से कि उस बात के लिए सॉरी, सो सॉरी अबाउट दैट. regret the error. I regret the error when you make some mistake in in your work, so you can say this sentence later
that I regret the error, I will fix it up. मेरे को इस एरर का खेद है, बट मैं इसे फिक्स कर दूंगा. सो इन सेंटेंसेस को यूज करके आप अपोलोजाइज कर सकते हैं अगर आपके वर्क प्लेस पर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है. एनी डाउट? Okay. Okay, thank you so much. Okay. The exact meaning of this word, Sanish, will be परेशानी. Like कोई डिस्कम्फर्ट अगर किसी को फील हुआ, ओके, कोई कठिनाई, परेशानी फील हुई, उसे इनकन्वीनियंस बोलते हैं. ओके. मैम आई एम सॉरी अबाउट दैट और सॉरी अबाउट दैट सेम होता है या अलग अलग है? आई एम सॉरी अबाउट दैट एंड आई एम सॉरी अबाउट दिस. दैट अबाउट दैट दो है ना. आई एम सॉरी अबाउट दैट एंड सॉरी अबाउट दैट. आपने दोनों ही सेम पूछा है. डिफरेंस क्या है, आप दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ. आपने बेसिकली अभी जो सेंटेंसेस बोले, दे बोथ आर सेम. आपने बोला जी आई एम सॉरी अबाउट दैट, और शायद आप ये बोल रहे हैं सॉरी अबाउट दैट, राइट? जी जी जी. ओके. आई एम सॉरी अबाउट दैट इज जस्ट अ फुल सेंटेंस. ये फुल सेंटेंस है कि मैं इसके लिए सॉरी हूं. बट व्हेन आई एम सेइंग सॉरी अबाउट दैट, सो मतलब इसके लिए मैं सॉरी हूं. बेसिकली दोनों का मीनिंग सेम होता है. आई एम सॉरी अबाउट दैट, वो थोड़ा फुल सेंटेंस जब यूज करते हो तो सेंटेंस का जो वेट है, वेटेज ऑफ द सेंटेंस, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. सॉरी अबाउट दैट थोड़ा सा इट कैन नॉट बी यूज्ड इन रिटन लैंग्वेज. सो जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, सो हमें प्रॉपर सेंटेंसेस लिखने होते हैं. But sorry about that can be used when we are talking to somebody, like in semi-formal situations, sorry about that can be used. But अगर आप formally किसी से बात कर रहे हो तो आपको I am भी लगाना है. Okay? All right. Moving to the next slide. Closing conversation. Now I am ending the conversation जब हम conversation बातचीत को end करते हैं. So these are the phrases that you can use. The first is thanks for your support. Thanks for your support. I appreciate your help. I appreciate your help. मैं आपकी help की प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ. Thanks for getting back to me quickly. What is the meaning of this sentence? आप में से किसी को पता है इसका meaning? The third sentence. Thanks for getting back to me quickly. यस मैम. मेरे पास वापस आने के लिए धन्यवाद. Could you repeat, Naresh? मैम थैंक्स मी गेटिंग बैक टू मी क्विकली का मतलब तुरंत किसी चीज के लिए हेल्प करने के लिए धन्यवाद बोलते हैं. मतलब मैंने कुछ आपको किसी काम के लिए बोला और अब तुरंत ही मेरी हेल्प करने के लिए आ गई. Yes, right. So basically, when you have asked somebody for some kind of help, or you have sent something to somebody, और उन्होंने आपको बहुत जल्दी उसका रिप्लाई दे दिया, so उसको जल्दी में हेल्प करने के लिए, yes, अविनाश, yes. So thanks for getting back to me quickly, कि that मुझे इतनी जल्दी हेल्प करने के लिए, या मेरे अगर कोई मैंने वर्क दिया था उसको करने के लिए. वैसे यहाँ पर गेटिंग बैक टू मी का मतलब यही होगा कि जो भी मैंने आपसे पूछा था वो आपने जल्दी से मुझे बता दिया, रिप्लाई कर दिया. सो थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी क्विकली का मतलब होता है जल्द से. ओके. नेक्स्ट वी हैव लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर. ये हम सेंटेंस तब यूज करते हैं जब हम किसी न्यू क्लाइंट को मिलते हैं. जब आप जॉब करेंगे, जब आप कहीं पर क्लाइंट डीलिंग करेंगे, सो वहां पर आपको ऐसे सेंटेंसेस यूज करने होंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर, कि हम मैं लाइक आई होप, या मैं आशा करता हूँ कि हम आप एक साथ आगे
काम करेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ ग्रेट डे अहेड. जैसे कि हम किसी को बाय बोलते हैं तो हैव अ गुड डे बोलते हैं. इन द सेम वे एट ऑफिस यू कैन से हैव अ गुड डे और यू कैन आल्सो से हैव अ ग्रेट डे अहेड. नेक्स्ट वी हैव टॉक टू यू सून. आपसे जल्द ही बात करूंगा या करूंगी. टॉक टू यू सून. टेक केयर एंड स्टे सेफ. टेक केयर एंड स्टे सेफ. आप ध्यान रखें और सुरक्षित रहें. लास्ट इज let's catch up next week. What is the meaning of this one? Let's catch up next week. इसका मीनिंग क्या होगा? Because this is something new, I would like to ask it from you. मैम Yes. अगले सप्ताह मिलने के लिए, जैसे अब बोल देना कि अब अगले सप्ताह मिलते हैं. Yes. So basically मिलने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं catch up. So let's catch up next week. That हम next week मिलते हैं. Yes Avinash, correct. Thank you everybody. You all are right. Now these are positive reinforcement. ये कुछ जब हम किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, उनको इनकरेज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, सो दीज आर द सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज. ये सेंटेंसेस आप इट इज नॉट लाइक ऑलवेज कंपल्सरी कि आप अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, वर्क प्लेस पर यूज कर रहे हैं. दीज सेंटेंसेस कैन बी यूज्ड with your friends, with your family as well. First is great job on that. Great job on that का मीनिंग होगा लाइक कोई एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, सो यू कैन से ग्रेट जॉब ऑन दैट. मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. नाउ आप अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, यू कैन से वेल डन टीम. थर्ड इज एक्सीलेंट वर्क. You can mention the name. For example, Rohit. Excellent work, Rohit. Thanks for pulling that together. What is the meaning of thanks for pulling that together? कोई गेस कर सकता है इसका मीनिंग क्या होगा? यस मैम. I हाँ. think to support the ownership that which can be done by one person, but suppose another person in coming in helping him or her, helping him to do him or her that he or she is telling him or her that thank you for pulling this work together, that we have with their support I am able to finish this work at a less time. Yes. Absolutely right. Basically, when you are being cooperative, you have like coordinated with your team so well, your coordination is good. तो अभी जैसे अविनाश ने हिंदी में बोला, सबको साथ लेकर आने के लिए या सबको साथ लेकर चलने के लिए, इसी को बोलते हैं व्हेन आप इसकी अप्रिशिएट करना चाहते हो किसी को इस बात के लिए, आप बोलेंगे थैंक्स फॉर पुलिंग दैट टुगेदर. ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑसम वर्क. देन यू कैन पुट द नेम. ऑसम का मीनिंग मैंने कल भी आप सभी को बताया था. सो ऑसम वर्क. नेक्स्ट वी हैव इज fantastic effort on this. Fantastic effort on this. जैसे कि great job on that था, उसी तरीके से fantastic effort on this मतलब आपने इस पर बहुत अच्छा काम किया. You nailed it. ये कल भी हमने पढ़ा था. You nailed it जब आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई कुछ भी जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे वो बहुत अच्छा हुआ है, सो आप अप्रिशिएट कर सकते हो यूजिंग दिस फ्रेज. नेक्स्ट वी हैव impressive results team. impressive results मतलब जब results बहुत अच्छे होते हैं. So यहाँ पर आपने देखा team word use हो रहा है काफी, because when we are working with a team, we are working with a group of people and that group of people is called team. So आप एक अच्छे एम्प्लॉय या फिर जब आप नेक्स्ट जॉब पर जाएंगे, आप तभी एक अच्छे एम्प्लॉय कहाए जाएंगे जब आप सभी के साथ मिलकर काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे. सो दैट इज इम्प्रेसिव रिजल्ट्स टीम.
Then we have brilliant job, keep it up. Keep it up is used that जो जैसा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इसे करते रहिए. Keep it up. Sorry. Then we have super proud of this. Super proud of this. For example, आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मुझे आप पर बहुत proud है. So you can say super proud of this. Yes, Anish, अच्छा काम जारी रखें. Keep it up. Next, we have thanks for going above and beyond. Thanks for going above and beyond. This is also a phrase and that is used very commonly. So, can anybody please answer what is the meaning of above and beyond? जो भी कुछ न्यू सेंटेंसेस आ रहे हैं ना मैं वो आप सभी से पूछ रही हूँ ताकि आप सभी उनको क्विकली ग्रैब कर पाओ. यस मैम. Yes. So what is the meaning? मैम जैसे कि किसी काम को उम्मीद से ज्यादा करने के लिए थैंक्स बोलते हैं, जैसे कि. Okay, good. This is correct. Anybody else who would like to answer? Yes, ma'am. Yes, Shivam. Ma'am, above means super. It means we can say that when we do something good and people about to appreciate us, go above. And beyond means आगे, That move forward. do more what is expected. Yes, good. हिंदी में भी जिन्होंने आंसर किया है सनीश, अविनाश, यू ऑल आर करेक्ट. बेसिकली व्हेन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कोई अच्छा करता है तो उसे बोलते हैं थैंक्स फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड एंड यू आर ग्रेटफुल टू देम. ओके, you are doing great. Now we are moving to the next sentence. You are doing great. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. You are doing great. Well done everyone. आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. Well done everyone. And ये जो फ्रेज है मैं आप सभी के लिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आप सब इंग्लिश सीख रहे हैं. So it's like well done everybody. So we are done with the phrases. Now I am presenting my another screen. On this screen we will be having dialogues. कल हम सभी ने डायलॉग्स प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था. आज अगेन हम डायलॉग्स प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें. आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो मैं आप सभी को ये बोल पाऊंगी दैट थैंक यू फॉर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड. ठीक है. So this conversation is between team meeting. Like this is a team meeting. There are 3 speakers, Alex, Maya, and Ravi. So for this conversation, I need 3 speakers. So whosoever wants to read, they can raise their hands. So 4 students have raised their hands. So I pick Naresh, I pick Tannu, and Gulshan. Okay. So Naresh, you will be playing the part of Alex. Tannu, you will be playing the part of Maya. And Gulshan, you are Ravi. Okay. You all can continue, please. Hello ma'am. Good evening everyone. Let's start. Sure, Alex. I think we should review the project timeline first. That sounds good. The timeline shows we are 2 days behind. I agree. The design files were delayed because the client changed the logo. I understand. Can we move the testing phase to next week? If we move testing, we will need to inform the QA team today. I will send an email to QA right after this meeting. Great. Also, we need a backup plan in case the server crashes. I will ask IT to set up a secondary server tomorrow. That should keep us safe. Let's keep the communication clear. Agreed. If anyone has issue, please speak up quickly. Thanks everyone. Let's meet again on Friday.
So very good, Naresh, Tannu and Gulshan. It was nice. आप सभी ने काफी improve किया है कल से. So this conversation was about a team meeting. इनमें काफी new phrases use किए गए हैं. आप सभी में से अगर किसी को कोई sentence और word समझ नहीं आया है और you would like me to know the meaning, you would like me to answer like any doubt, you can please ask. Any doubt? No, ma'am. Okay. Anybody else? What is mean by QA team? This one? Yes. In this sentence, if we move testing, we will need to inform the QA. QA यहाँ पर होता है क्वालिटी एनालिसिस टीम. क्वालिटी एनालिस्ट बेसिकली कंपनीज जो होती हैं उनमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग. सो यहाँ पे QA टीम का मतलब है क्वालिटी जो एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी की, जो भी उनके प्रोसेसेस चलते हैं, तो उन प्रोसेस को कि वो कितनी क्वालिटी से कोई डिलीवर कर रहा है, उनको जो एनालाइज करता है वो QA टीम होती है, वो एनालाइज करती है. ओके, थैंक यू गुलशन. एनीबडी एल्स? इफ यू सी इट केयरफुली, आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे मे बी जिनका मीनिंग आपको नहीं पता. सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू रीड दिस डॉक्यूमेंट केयरफुली ताकि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकें. Kajal, Shivam, Pritika, you are raising your hands. Do you have any doubts? यस मैम, एक बार इन Yes. सबको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए. Okay, sure. Alex, good morning everyone. Let's start the meeting now. Let's start का मतलब होता है मीटिंग स्टार्ट करते हैं. Sure, Alex. I think we should review the project timeline first. टाइमलाइन का मतलब होता है कि जैसे आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको 7 डेज चाहिए, 10 डेज चाहिए. सो वो जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है उसे टाइमलाइन बोली जाती है, जो ओके मैम. जो आपको प्रोजेक्ट्स में अपनी कंपनीज में आगे जाकर मिलेंगी. ओके, दैट साउंड्स गुड. दैट साउंड्स गुड का मतलब होता है दैट ये अच्छा है. ओके, द टाइमलाइन शोज वी आर 2 days behind. 2 days behind मतलब हम 2 दिन अभी पीछे हैं. ओके, ओके मैम. आई अग्री द डिजाइन फाइल्स वर डिलेड. मतलब यहाँ पर ना 2 days का उन्होंने बोला है कि उनका डिले है. सो जो डिले हुआ है वो अब रवि बता रहा है दैट द डिजाइन फाइल्स वर डिलेड बिकॉज द क्लाइंट चेंज द लोगो. सो क्लाइंट ने लोगो चेंज कर लिया, इसलिए जो फाइल्स थी वो डिले हो गई हैं. आई अंडरस्टैंड. कैन वी मूव द टेस्टिंग फेज टू नेक्स्ट वीक? मूव का मतलब होगा क्या हम ये जो टेस्टिंग फेज है इस जो पर्टिकुलर फेज को क्या हम नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर सकते हैं? सो एलेक्स सेड इफ वी मूव टेस्टिंग वी विल नीड टू इन्फॉर्म द QA टीम टुडे. अगर हम ऐसा करते हैं सो हमें वी विल नीड टू इन्फॉर्म, हमें QA टीम को इन्फॉर्म करने की जरूरत होगी. सो रवि ने बोला आई विल सेंड एन ईमेल टू QA राइट आफ्टर दिस मीटिंग. मैं एक ईमेल QA टीम को कर दूंगा राइट आफ्टर दिस मीटिंग का मतलब हुआ है तुरंत ही इस मीटिंग के बाद. ओके, देन माया सेड ग्रेट. Also we need a backup plan in case the server crashes. बैकअप होता है, बैकअप का मतलब होता है आप सभी ने सुना होगा ना बैटरी बैकअप, जैसे इन्वर्टर में होती है. सो बैकअप का मतलब होता है कि जब कुछ ना हो तो उसके जगह पर और कुछ होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये क्लास लैपटॉप से ना ले पाऊं तो मेरे पास बैकअप क्या है? मेरा फोन मेरा बैकअप है. ओके, I will ask IT to set up a secondary server tomorrow. That should keep us safe. Let's keep the communication clear.
दैट शुड कीप अस सेफ का यहाँ पर मीनिंग ये होगा कि ये हम सभी के लिए ठीक रहेगा। लेट्स कीप द कम्युनिकेशन क्लियर, हम अपनी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर रखते हैं। सो माया ने बोला अग्रीड। अग्रीड का मतलब होता है जब आप किसी बात से सहमत होते हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई अग्रीड। इफ एनीवन हैज इश्यूज प्लीज स्पीक अप क्विकली, अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप जल्दी बताइए। सो आई थिंक दिस वाज क्लियर नाउ। Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Okay. Now Thank this you, ma'am. conversation is between Sarah and a client. This is a client call. जब हम वर्क प्लेस पर हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके की कॉन्वर्जेशंस को हमें डील करना है। तो पहली जो कॉन्वर्जेशन थी वो विद इन द टीम थी, मतलब आपके कलीग्स के साथ थी। बट नाउ इफ द सिचुएशन इज ऑफ क्लाइंट कॉल, आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, सो आप कैसे बात कर सकते हैं? नाउ दिस इज अबाउट क्लाइंट कॉल, क्लाइंट डीलिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। So I need two speakers for this conversation, Sarah and client. So willingly, who would like to speak? Ankush, I choose you, and Payal. So Payal, you are Sarah, and Ankush, you are client. Please continue. Hello, this is Sarah with a solution. How can I help you today? Hi Sarah, we need a new website. Can you tell me the cost? Sure. First, I need to know what type of website you want. Payal, sorry to interrupt you. If you are using an earphone, आप उसे रिमूव कर दे, मे बी उसका माइक ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, सो आपकी वॉइस काफी मिक्स हो रही है। Okay, ma'am, wait a minute. ओके। Yes. We need a simple site with 5 pages and a contact form. For a sample site, the cost of usually between 30,000 and 14,000. That sounds okay. What about the timeline? We can finish the designs in 2 weeks and launch in 4 weeks. Do you provide maintenance after launch? Yes, we have a monthly plan for 2,000. It includes updates and support. That works for me. Please send the proposal by tomorrow. I will email it today. Thank you for considering us. Thank you for considering us. Thank Okay, you so much, both of you. Now, if you have any doubts इस conversation में, मैं इस conversation को दोबारा read कर रही हूँ. So, I'm starting with Sarah. Hello, this is Sarah from Digital Solutions. How can I help you today? Hi, Sarah. We need a new website. Can you tell me the cost? Sure. First, I need to know what type of website you want. We need a simple site with 5 pages and a contact form. So basically in this conversation, जो client है वो एक सारा जो यहाँ पर हमारी second speaker है, उसमें जो सारा डिजिटल सॉल्यूशंस में काम करती है और वहां पर ये वो क्लाइंट को डील कर रही है। सो उसमें क्लाइंट क्या पूछ रहा है? वेबसाइट के बारे में, उसे वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। सो सारा ने बोला फॉर अ सिंपल साइट, मतलब एक सिंपल साइट बनाने के लिए द कॉस्ट इज यूजुअली बिटवीन 30,000 एंड 40,000। 30 से लेकर 40,000 की कॉस्ट रहती है। क्लाइंट ने बोला दैट साउंड्स ओके, मतलब ये ठीक है। व्हाट अबाउट द टाइमलाइन? आप कितने दिन में बना दोगे? वी कैन फिनिश द डिजाइन इन 2 weeks एंड लॉन्च इन 4 weeks। डिजाइन 2 weeks में फिनिश हो जाएगा और जो वेबसाइट होती है ना उसे लॉन्च किया जाता है। सो डिजाइन बनने के बाद 4 weeks में उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। डू यू प्रोवाइड मेंटेनेंस आफ्टर लॉन्च? वेबसाइट को मेंटेन भी किया जाता है और उसके लिए कॉस्ट होती है। सो क्लाइंट पूछ रहे हैं क्या उसके बाद आप मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं? सो सारा सेड यस, वी हैव अ मंथली प्लान फॉर 2,000। इट इंक्लूड्स अपडेट्स एंड सपोर्ट। उसने बोला दैट हाँ हम करते हैं एंड वो जो मंथली प्लान है दैट कॉस्ट ₹2,000 एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? अपडेट्स एंड सपोर्ट।
So client said that works for me. Please send the proposal by tomorrow. Client has said okay, और उसने बोला है कि आप अपना proposal मुझे कल भेज दीजिए. Sarah said yes, I will email it today. Thank you for considering us. कि मैं आपको मेल कर दूंगी और हमें चुनने के लिए thank you. Now this conversation is between HR and candidate. It's an interview. So now I again need two candidates for this conversation. Please raise your hands. Now I need new students. आप सभी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, this is the platform where you can speak. आप सभी को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप वहां पर अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सके. अदरवाइज आप सभी को पता है हम इंग्लिश इतना बोल ही नहीं पाते क्योंकि आसपास हमारे ज्यादा कोई इंग्लिश बोलता नहीं है. सो दिस इज फॉर यू. ये आपकी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप सभी इसका प्लीज यूटिलाइज करें इसे. I need new student. Sheetal, good, very good. So Sheetal and Harpreet, I choose both of you. Sheetal, Harpreet. Sheetal, you are an interviewer, and Harpreet, you are a candidate. Start. Please come in and have a seat. Thank you. I am happy be here. Can you tell me about your previous job? I worked as a contact writer for 3 years. I wrote articles, blogs, and social media posts. मैं भी बोलना चाहता हूँ. What was your biggest achievement there? I increased blog traffic by 40% in 6 months. That's impressive. Why do you want to join us? Your company has a strong focus on digital marketing and I want to grow in that area. Do you have any question for me? Yes, could you tell me about the team I will be working with? The team has 5 members and we working on multiple projects each month. Thank you for the information. We will let you know by next week. Thank you so much both of you. And Ayush, आपने अभी बोला है that आप भी बोलना चाहते हैं. Of course आप बोल सकते हैं. We have this conversation as well. So Ayush, for reading this conversation, I need a speaker who can read this with him. So Sonu, I choose you. So Sonu, you will be reading the sentences of Leena, and Ayush, you will be reading the sentences of Mr. Patel. Okay? ये Good vendor afternoon, Mr. Patel. Ayush, Thanks just a for minute. Just a minute. Yes, ma'am. वेंडर नेगोशिएशन क्या होती है, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. वेंडर नेगोशिएशन इज जब हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, हो सकता है वो क्लाइंट हो सकता है हम अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं, कुछ बाय करना चाहते हैं, तो उसका प्राइस आप जैसे हिंदी में बोलते हैं मोल भाव करना. सो नेगोशिएशन वही होती है. अब वो इस कॉन्वर्जेशन में हम जानेंगे दैट लीना एंड मिस्टर पटेल कैसे आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं. ओके, सो कंटिन्यू प्लीज, आयुष एंड सोनू. Good afternoon, Mr. Patel. Thanks for joining the call. Good afternoon, Lena. Happy to be here. We like the products, but the price is a bit high for us. I understand with the price range of you thinking. We can go up to 15,000. I understand with the price range you are thinking. If we order 50 units, can we lower it to 14,000? Your cost is 18,000, but I can offer a 10% discount for bulk or other orders.
I think you have read the wrong sentence. It's okay. The next speaker, you can start with let me check. Okay. Let me check. Pause. Yes, we can do 4,500 for 50 units. Who was Lena in this conversation? Was it Sonu? No, ma'am, I am Mr. Patel. Okay. I think. Ayush, please read this sentence. That's still a bit high. जी मैम agree right we cannot absent 40,250 for 15 units. Ayush, you have to read the sentence, the first sentence. That's still a bit high. तो ये sentence है ना, ये वाला. I'm highlighting this one. अच्छा ठीक है मैम सॉरी. It's okay. Thanks still a bit high. Can we split the defense at 14,250? All right, we can accept 14,250 for 50 units. Great. I will send this process order today. Thank you, Lina. We will deliver next week. Okay, thank you so much, Ayush. Thank you, Sonu, for reading this conversation. Now, the last conversation is of IT help desk. IT help desk होता है बेसिकली जब हम ऑफिस में होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कंप्यूटर से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है. सो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए उस आईटी में हेल्प लेने के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी का हेल्प डेस्क होता है. So again, I need two speakers. Okay, they can Yes, speak. ma'am. This So side, willingly, Uttar who would like to come willingly? Utkarsh Pandey, ma'am. Like a Okay. IT Okay. service So provider. Pushkar, right? No, ma'am. Utkarsh Pandey. Yes, ma'am. Utkarsh. Maybe. Okay, Utkarsh, Yes. and the second, Yes, ma'am. what's your name? Naresh, ma'am. Okay. So Naresh and Utkarsh, you will be reading the sentences of user, and Naresh, you will be playing the role of IT. Okay, ma'am. Okay. Okay. Hi, I having trouble with my computer. It's keep freezing. Thanks for letting me know. When did this start? I started this morning after I opened an email. Did you notice anything unusual before it froze? No, I was just reading my inbox and then it stopped responding. Okay, let's try a quick restart. Please hold the power button for 5 seconds. Okay, I did it. Now it's back on. Good. Now open the task manager and see if any program is using a lot of CPU. I see that Chrome is using 90% CPU. That might be the cause. Close Chrome and open it again. Done. I still slow. Let's clear the browser cache. Go to settings, then privacy and clear cache. I cleared it. Now it's better. Great. If it freezes again, please run a virus scan and let me know the result. Sure, I will do that. Thank you for helping. You're welcome. Have a good day. Thank you so much. Thank you, Utkarsh and Nitish or Niresh. Sorry if I'm pronouncing your name incorrectly. So आप सभी का थैंक यू जिन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया. आप सभी ने कल से बहुत अच्छा बोला है. एंड आयुष आपने बोला है दैट मैम मेरा फर्स्ट टाइम था बोलने के लिए, इसलिए कुछ गलत बोला हो तो सॉरी मैम. आप सॉरी मत बोलिए बिकॉज आपने ट्राई किया, इसके लिए आई थैंक यू. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट कि आप बोलो. So thank you so much. Thank you everybody, and you all are doing so good. Keep it up. Thank you so much. I'm
winding up this session. Thanks, everybody. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Good night, everyone. सो थैंक यू एवरीवन एंड नाउ सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अपना सॉरी प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में खुद ले सके रिकॉर्ड पर्पस के लिए। थैंक यू। और मीनवाइल अपने अटेंडेंस के लिए आप अपने नाम और अपने नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट्स लिख के चैट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी आगे कंप्लीट रिमार्क्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट मिस ज्योति अतालकर मैम को। ओवर टू यू मैम प्लीज। हाँ, यस, थैंक यू अभिषेक, और सॉरी बच्चों की मेरा आज वीडियो ऑन नहीं है। और थैंक यू श्वेता फॉर हैविंग टेकन सच ए वंडरफुल क्लास। एंड जब क्लास के कंक्लूजन में आपने बोला कीप इट अप, तो जो आपने सिखाया आपने उसको यूज किया। काजल ने हैंड रेज किया हुआ है, और शायद काजल ने ही क्लास के बीच में बोला था कि मैम आप हिंदी में बताइए। तो जिस तरह से अच्छे तरीके से श्वेता ने बोला अंग्रेजी में, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे बोला जाता है, और उसके बाद उसका हिंदी में मतलब, तो आपको पता चले कि किस प्रकार की बातचीत हो रही है। बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही इफेक्टिव क्लास थी। 65, 67, एक मतलब 65, 67 नंबर क्लास में पार्टिसिपेंट्स का रहा। काफी अच्छा पार्टिसिपेशन था। उम्मीद है कि ऐसी पार्टिसिपेशन आप रोज इस क्लास में देंगे, रेगुलरली क्लास को अटेंड करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो जिन सबने आज क्लास को ज्वाइन किया है, कि आपको ऐसा अवसर मिलता नहीं है कि जहाँ क्लास में आप कन्वर्सेशन की बात करें, आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, आप नेगोशिएट कैसे करेंगे, ऐसी बातचीत आपको सिखाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सक्षम रोजगार सोसाइटी आपको दे रही है, और आपके 9 से 10 है। एक मेहनत करने वाली बात है कि आपको एक काम करना है, मन में सोचना है, तो इसके बाद नतीजे तो बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। और क्लास में आप सबने ज्वाइन किया, काजल, आयुष, अनिकेत, अंजलि, अंकिता, अंकुश कुमार, अनुष्का नायर, अर्पित वर्मा, अविनाश, दिव्यांशु, फरत अंसारी, गुलशन कुमार, गुलशन सिंगले, ज्ञानेंद्र पांडे, हरप्रीत कौर, काजल, करण, खुशबू कुमारी, ममता श्रेष्ठा, मनीष कुमार, नरेश, नाजिया पर्सनल, नितिन, पायल, प्रतिका, राधा आर्या, पद्मिनी, रितेश, साहिल कुमार, साक्षी सिंह, संजय कुमार, संजू सैनी, सौरभ कुमार, शीतल तंबुलकर। शीतल हर समय अपना वीडियो ऑन करके रखती हैं। थैंक यू वेरी मच शीतल फॉर योर अटेंटिव पार्टिसिपेशन। शिफा मंसूरी, लोकेंद्र कुमार, सिमी, सिमरन, सोनू, सुजल शर्मा, तनु पाल, उत्कर्ष पांडे, विकास कुमार वर्मा, यस वृक्ष, ऋषान। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी कल आपकी क्लास रहेगी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। टेलीफोन पर कैसे बातचीत की जाती है, फोन पर किस तरह से बातचीत की जाती है, उसको आपकी मैम श्वेता बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगी। क्लास आप समय से ज्वाइन करिए। आपके संपर्क में कुछ और लोग जो ऐसी क्लासेस को ज्वाइन कर मैम। सकते हैं, जिससे उनको फायदा मिल सकता है, आप उनके साथ उसको शेयर कीजिए। सक्षम रोजगार सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर जो हम क्लासेस को पोस्ट करते हैं उनको लाइक कीजिए, उनको व्यू कीजिए, उनको शेयर कीजिए। और इसी तरह सक्षम रोजगार सोसाइटी की जो ये मुहिम है कि ज्ञान बांटने की, नॉलेज बांटने की, शिक्षा को बांटने की, इसमें आपका सबका योगदान रहे, आपका सक्रिय योगदान रहे। तो आपसे फिर से यही कि सक्षम रोजगार सोसाइटी के यूट्यूब चैनल, सक्षम रोजगार सोसाइटी का फेसबुक पेज और सक्षम रोजगार सोसाइटी का इंस्टाग्राम पेज, सभी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और व्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your concluding remarks. Now I'd like to invite Ankush for the vote of thanks. Over to you, Ankush. Thank you, Abhishek sir.
Good evening, dear friends. I, Ankush Kumar, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Mrs. Sweta for taking a wonderful session on workplace conversation. We look forward to more such classes. A big thanks to dear students for your active participation. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society. Who graced today's class finally. Thanks to Mrs. Junaira Amreen ma'am for having taken so much interest in the training sessions. Wishing you all a very good night. Thank you. Over to you, Abhishek sir. तो थैंक यू अंकुश फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। और आगे आपको जैसा कल की क्लास हुई थी हमारी, उसका जो लिंक है यूट्यूब पे, सॉरी क्लास डाल दी गई, उसका लिंक आपको ग्रुप में दे दिया गया है। तो प्लीज आके उसको देखें अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपका रह गया है या आप उसे दोबारा सीखना चाहते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन हु भैया हेलो जॉइंड टुडे। हाँ